My pranams to Pujipute and my pranam to everyone. Let's sit straight. So your planning for yoga session starts from today itself. This is the so yes. So sit straight. Let's do Om for 3 times, and then I will request Pujipute to start the session. So sit straight, neck straight, smile on the face. I know you've been waiting for such a long time, but I can tell you this is worthwhile because कभी कभी भगवान और गुरुदेव के दर्शन के लिए कभी कभी तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या के बाद जो फल मिलता है वो बहुत आनंद देने वाला होता है। तो आप लोगों ने जो तपस्या की है, अभी जब गुरुदेव अपना प्रवचन पूरा करेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा। आज से जीवन में भी बहुत अच्छा दिव्य अनुभूति घटित हो गया है। आप सबको मेरा एक दिव्य रूपांतरण घटित होगा। दिस जर्नी इज राइट from mortality to immortality and from ignorance to knowledge. Knowledge is what? To realize that we are blissful souls. We are consciousness, existence, and happiness. This itself. We are not this blind body complex. अभी जब इस पे उलझे हुए तो संसार में बहुत सारा दुख होता है। I am a qualified medical doctor. I understand that the psychosomatic disorders that starts because of the state of mind and the conflicts that we go through. You know, so there are lots of research that we're doing. The point I wanted to make is that जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, अभी गुरुदेव आपको प्रवचन करेंगे, जैसे जैसे हम अपने स्वरूप में जाते हैं, हमारा स्वरूप आपकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। You know, whether you are 50, 60, 21 or whatever age you are. What matters is that whether you are, you know, in your Swarup or not. Your Swarup is Sadchidanand. So we'll say Om for 3 times, but start practicing Om 11 times in the morning, in the afternoon if you can, and in the evening. The way I'm suggesting you, if you start doing that, देखिए भगवान की किसी भी अच्छी मूर्ति को देखें, अपने लेवल में, अपने नाभि में उस प्रकाश को अनुभव करें। ये प्रकाश है ज्ञान का, ये प्रकाश है उस परा विद्या का, ये प्रकाश है उस दिव्य चेतना का। ये जो प्रकाश हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस जब हायर लेवल में जाता है, जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करेंगे, अनुभव ये करें अपना सारी जो बाहर बिखरी हुई है ना, all the modifications of mind which are external, we are trying to bring it internal. Because we are the bliss itself, we are the happiness itself. Tatathamasi Shetaketu. We are that happiness that we've been searching outside. That is what it means. So, आप अपने नाभि केंद्र में प्रकाश को देखें, और जब ओम का उच्चारण करें तो see that, you know, through your spinal cord that light is going upwards. It is piercing all your chakras, Mooladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Agya, Sahasrara, and it's piercing your head and going a feet and half above your head, and it is blossoming into a beautiful lotus flower. अब इसका जितना जितना इसका विकास करेंगे, the more you expand it in your visualization, more you will see that you are going away from the body consciousness. And spirituality is all about losing this body consciousness and getting established in your inner consciousness, your true nature, that is Satchidananda Swarup. So let's say Om for 3 times. Beautiful. Once more. One last time, with full enthusiasm and happiness that this light is rising, you know, it's ever rising. And as it rises, it is taking you to the higher consciousness where there is no conflict inside, there is no affliction, there is no sorrows, you're full of blissfulness.
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिरतानुशासनम् रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामोत्तर भो राम मामोत्तर भो राम मामोत्तर। इट इज सच ए डिवाइन लोकेशन। आज बहुत ही शुभ दिन है। गुरुदेव यूजुअली ही डजंट ट्रैवल अ लॉट, बट अभी एक दिन महीने से गुरुदेव यूरोप में भी काफी प्रवचन करके आ रहे। हम सब लोगों का सौभाग्य कि गुरुदेव आज हमारे बीच में। गुरुदेव किसी परिचय के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ही इज एन यू नो ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। गुरुदेव 50 इयर्स से, लास्ट 49-50 इयर्स से संस्कृत की राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत स्कॉलर्स इन प्रेजेंट टाइम्स। और कई इनके ऐसे मेधावी शिष्य हैं जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में बहुत सारा समाज का कार्य कर रहे हैं, भारत देश का, हमारी संस्कृति का नाम गौरवान्वित करें। स्वामी रामदेव जी उनमें से एक है, प्रमुख है। और उनकी तो 40-50-60 मिलियन में उनकी फॉलोइंग, आप समझ सकते हैं इतना बड़ा कार्य करें, उससे करोड़ों लोगों का लाभ हो रहा है। तो ये सब गुरुदेव की जो प्रेरणा है, गुरुदेव की जो शक्ति है, गुरुदेव का जो आशीर्वाद है, उसी से सब संभव हो रहा है। हम सब भी गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी जीवन इतना दिव्य हो, तेजस्वी ओजस्वी हो, ताकि हम समाज का अच्छा कर। गुरुदेव को बहुत सारे पुस्तकें भी बहुत अच्छी लिखी है। उसमें सबसे जो मेरी प्रिय है वो जीवन का समाधान है। इस बार तो उसकी व्यवस्था नहीं होगा, साफ करके कि यहाँ पे उस पुस्तक का वितरण करें। बड़ी सुंदर पुस्तक है। दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन टू लाइफ प्रॉब्लम्स। इट टॉक्स अबाउट एवरीथिंग एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। सो गुरुदेव ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और बड़ा सरल व्यक्तित्व, दिव्य व्यक्तित्व है, आत्मलंब श्रोत्रिय धर्मनिष्ठ अर्थ करें, उनको आशीर्वाद दे, हम सब के जीवन में ज्ञान का प्रकाश बढ़े। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। मुझे इस परिसर में आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपके बीच मैं अपने को पा रहा हूँ, जैसे कि बाहर से काम करके जब कोई व्यक्ति अपने घर में आता है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। कार्यालय से घर में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में आ गया, और काफी दूर था, इसके कारण आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी कृपाओं को हम ग्रहण करने के लिए रिसेप्टिव हो जाए। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा दया स्वरूप है। परमात्मा उसके जिस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं वही हम में अवतीर्ण हो जाता है, उतर जाता है।
परमात्मा को जब ज्ञान स्वरूप देखते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। उसको करुणा में देखते हैं तो हमें हमारे भीतर करुणा उतरने लगती है। परमात्मा को प्रेम में देखते हैं तो हम भी प्रेम से भर जाते हैं। परमात्मा को उदारता के रूप में देखते हैं कि कैसा उदार है, सब कुछ उन्होंने हमारे लिए दे दिया, तो हमें भी उदारता आने लगती है। तो जिस जिस रूप में भी भगवान को हम याद करते हैं वही हम हो जाते हैं। यम यम देवताम उपासते स तथा भवति, वो वैसा ही हो जाता है। तो हम भगवान से यदि ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान की आवश्यकता अनुभव करें। प्रार्थना का अर्थ होता है आवश्यकता अनुभव करना। तो तीन वेदों में हमें तीन विषय मिलते हैं। एक कर्म का संदेश वेद देते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए जिससे दूसरे को लाभ मिले, दूसरे को सुख मिले। एक ज्ञान का संदेश देते हैं कि हमें अपने कर्तव्य और अकर्तव्यों का ज्ञान करना चाहिए और अंत में अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए। हमारा शरीर से अलग जो अपना स्वरूप है उसको हम जाने। और वेद प्रेम का संदेश देता है कि सृष्टि और सृष्टा इन दोनों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहे, हम प्रेममय हो जाएं। किसी के सुख में सुखी होने का नाम प्रेम है और किसी के दुख में दुखी होने का नाम करुणा है। जैसे कोई व्यक्ति है और हम भी यदि सुखी हो गए तो समझे कि हम हमारा उससे प्यार। और कोई व्यक्ति दुखी है, कष्ट में है, और हम भी यदि उसके साथ एक हो जाते हैं तो करुणा प्रवाहित हो जाती है। तो अपने चित्त को शुद्ध करने के ये साधन है कि कोशिश करने से हमारा मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। जैसे हम बाहरी व शुद्ध करते हैं यंत्रों के और पोछे के द्वारा, हम जैसे बाहरी वातावरण को शुद्ध करते हैं, ऐसे अपने भीतर भी है उसको शुद्ध करने के लिए भी हमें कोशिश करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है। और वो प्रयत्न किस रूप में करना होता है? वो प्रयत्न यही है, जैसे आप सत्संग कर रहे हैं, आप देवताओं की पूजा करते हैं, आप शास्त्र अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो इन उपायों के द्वारा हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होते हैं। बुद्धि एकाग्र भी होती है, शुद्ध भी होती है। मन एकाग्र होता है, शुद्ध होता है। हमारा मन अस्वच्छ होता है तो हमारी इच्छाएं अलग प्रकार की होती है, और मन शुद्ध होता है, एकाग्र होता है तो इच्छाएं बदल जाती है। ये बात आप देख करके, आप अनुभव करके देखें कि जब हमारा मन कभी तो कैसी इच्छा करता है, कभी कोई दूसरी प्रकार की इच्छा करता है, उसमें कारण क्या है? एक ही तरह के प्रवाह क्यों नहीं होता हमारे मन में? माने आप ऐसा देखिए, एक ही व्यक्ति में अलग अलग प्रवाह फूटते रहते हैं। माने अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग धाराएं, ये तो ठीक है। कोई व्यक्ति खेलना पसंद करता है, कोई व्यक्ति लिखना पसंद करता है, कोई व्यक्ति गाना पसंद करता है, कोई व्यक्ति कोई हाथ से कोई मशीनरी के काम में एक्सपर्ट होता है। अलग अलग काम होते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन एक ही व्यक्ति के अलग अलग रूप हमको देखने को मिलते हैं। कभी वो गुस्सा करता है, कभी शांति चाहता है, कभी वो उदार होता है और कभी वो बहुत ही अपने हाथ को संकोच कर लेता है, कभी वो बहुत ही हिंसक प्रकृति का होता है, कभी वो बिल्कुल प्रेम से भर जाता है। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग जो हमारे व्यक्तित्व के रूप हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा? तो उसको हम ऐसे समझें कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है
वो गुणों के आधार पर बदलता रहता है। ये सारा अस्तित्व जो है वो त्रिगुणात्मक है। तो योग शास्त्र में कहा है कि जब रजस्तमोभ्याम संश्लिष्टम चित्तम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। जब हमारा चित्त में रजोगुण तमोगुण होता है तो इसमें दो तरह की उसको ऐश्वर्य की इच्छा होती है, धन वैभव शक्ति सामर्थ्य और शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ऐश्वर्य और विषय ये दो चीजें हम चाहते हैं। जब हमारा मन रजोगुण तमोगुण से युक्त होता है तो दो चीजें उसको भाती हैं, या तो वो ऐश्वर्य चाहता है या विषय चाहता है। विषय का अर्थ है ये संसारी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, उनको चाहता है। जब हमारा मन में रजोगुण की मात्रा अधिक होती है तो उसके मन में, उसकी बुद्धि में, यानी शरीर से अलग जो मन बुद्धि वर्क कर रहे हैं, और उससे परे एक आत्मा है जो शांत एकदम चैतन्य रूप है। तो ये तीन स्तर, चार स्तर बांट करके देखिए। एक तो शरीर है, शरीर के भीतर यदि इनको कोषों के रूप में देखें तो शरीर है, शरीर के भीतर ये प्राण जो नासिका से चल रहा है, उसके भीतर हमारा मन है, उसके भीतर बुद्धि है, उसके भीतर एक सुख का अनुभव करने वाला है, सुख का अनुभव होता है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि जैसे हमारा ये जो शरीर है ये तो अन्न से पालित पोषित होता है, हम खाते पीते हैं और उससे इसका पोषण होता है। इसके पीछे प्राणमय कोश है, उस प्राणमय कोश को हम अपने आहार विहार के द्वारा ही उसको भी पुष्ट करते हैं। फिर मनोमय कोश है, स्वाध्याय के द्वारा, ये जो सत्संग और स्वाध्याय के द्वारा मनोमय कोश हमारा पुष्ट होता है। और फिर हम विचार करते हैं, निश्चय करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे भी ज्ञानमय कोश पुष्ट होता है। और उसके बाद इन सब के आधार पर जिसको सुख अनुभव होता है वो आनंदमय कोश है। और आत्मा इन पांचों कोशों से अलग है। जहाँ सुख का अनुभव होता है उसको आनंदमय कोश कहा। जैसे कि किसी अनुकूल परिस्थिति के समय हमारे मन में एक स्थिति पैदा होती है, या निद्रा के समय हमें सुख अनुभव होता है, तो इन पांच कोशों से अलग एक आत्म तत्व बताया। और तीन शरीर, इन पांच कोशों को तीन शरीरों में भी बांट करके देख सकते हैं। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, इन दोनों को एक स्थूल शरीर के अंतर्गत ले सकते हैं। और मनोमय कोश को या प्राणमय कोश मनोमय कोश को सूक्ष्म शरीर के अंदर, और विज्ञानमय कोश को हमारा कारण शरीर विज्ञानमय कोश, और आनंदमय कोश को कारण शरीर के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा हम विभाग करके देख सकते हैं। कि जैसे एक स्थूल शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है और सुख का अनुभव करने वाला है, ये पांच हैं। इनको हम तीन शरीरों में बांट करके देख सकते हैं। और हमारी तीन अवस्थाएं होती है, जागृत अवस्था और एक ड्रीम स्टेट। ये जो अवेक अवेक स्टेट, वी आर अवेकन, ये जागे हुए हैं, अभी इस समय हम सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये हमारी जागृत अवस्था है। फिर हम सो जाते हैं तो स्वप्न आने लगते हैं, तो वो स्वप्न अवस्था होती है। फिर हम और गहरे चले जाते हैं तो वो सुषुप्त अवस्था होती है। तो आत्मा इन तीनों अवस्थाओं से अलग है, आत्मा इन तीनों शरीरों से अलग है, आत्मा पांचों कोशों से अलग है। ऐसा वो आत्मा है जो शुद्ध सत्य चित आनंद स्वरूप है। एक आनंद तो हम बाहरी चीजों से ग्रहण करते हैं, सुख का अनुभव हमें अनुकूल परिस्थितियों से होता है, और एक आनंद हमारा स्वरूप ही होता है। तो ये थोड़ा सा भारी पड़ रहा होगा समझने में, थोड़ा सा जो है हैवी महसूस हो रहा होगा। फिर मैं सरलता की तरफ आता हूँ। आत्मा शुद्ध है और अपने मन बुद्धि को हमें थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है, हमें इसको प्रशिक्षण देना पड़ता है। और आत्मा की उपस्थिति में मन बुद्धि, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में
हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। यदि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही आत्मा ना हो तो हमारा मन बुद्धि शरीर ये सब निष्प्राण हो जाते हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे। पर मन बुद्धि ऐसे समझो कि जैसे एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो मन बुद्धि में जो संस्कार रहते हैं वो तो सॉफ्टवेयर की तरह है, और उसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो स्थूल शरीर के पार्ट है, जैसे ब्रेन है, जैसे हमारा हार्ट है, तो वो हमारे हार्डवेयर की तरह है। सूक्ष्म जो हमारा मन बुद्धि का सूक्ष्म रूप है, जिसमें संस्कार स्टोर होते हैं, स्कार्स जो है ना उसमें स्टोर होते हैं, वो हमारे मन बुद्धि में जिस तरह के संस्कार होते हैं उसी तरह की हमारी इच्छाएं होती हैं, उसी तरह के हमारे उसके बाद कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फिर हमारा जीवन होता है। हमको अगला जो जन्म मिलता है उसी संस्कारों के आधार पर मिलता है। मानी इस जन्म में हम पूरे जीवन भर जो जो कुछ भी हम करते चले जाते हैं, उसका सूक्ष्म अंश मरते समय एकदम इकट्ठा हो जाता है। कोई सिस्टम है ऐसा, ये कैसे होता है इसमें न जाकर हम ये समझ लें कि शास्त्र ऐसे समझाते हैं कि मरते समय हमारा पूरा व्यक्तित्व जो है वो जैसा होता है, मानी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म प्रधान होते हैं, कुछ भाव प्रधान होते हैं, कुछ ज्ञान प्रधान होते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। तो जिस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होता है वैसा ही हम अगले जन्म में छलांग लगा देते हैं, अगला जन्म हमको प्राप्त हो जाता है। कर्म प्रधान व्यक्ति कर्म करने में आगे उनका विकास हो जाता है, आगे चल करके कर्म के रूप में विकसित होता है। ज्ञान प्रधान व्यक्ति पढ़ने पढ़ाने में खोज करने में लग जाते हैं, दार्शनिक फिलोसोफर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं, चित्रकार बन जाते हैं, पेंटिंग करते हैं बहुत बड़ी बड़े, और वो योजना अलग अलग प्रकार की योजनाएं उनका उनको निर्माण करते हैं। और तीसरे भाव प्रधान होते हैं तो वो भक्ति में चले जाते हैं। तो ये सारा कर्म के द्वारा हमारा निर्माण होता है, और कर्म से निर्मित होकर के ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है। हम अपने मन बुद्धि का निर्माण कैसे करें, ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या है। शरीर को सबसे पहले स्वस्थ रखें, फिर मन बुद्धि का निर्माण करें, फिर अपने भाव को भी परिष्कृत करें। ये हमारे जीवन का टारगेट रखना होता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, आहार विहार, इस एक अनुशासन में जीना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं निरोग रहूं, स्मार्ट रहूं, और कभी भी मुझे रोग ना आए, तो उसको उचित भोजन, उचित निद्रा, और मन की प्रसन्नता, और योगासन और प्राणायाम, ये 5 चीजें करनी पड़ेगी। योगासन कहें उसको, शारीरिक फिजिकल एक्टिविटीज कहें, प्राणायाम कहें, इन 5 को कोई करेगा तो आपके पास समर्थ गुरु यहाँ पर हैं। कभी बीच बीच में इनको बुला करके और कोई सेशन रख सकते हैं, सप्ताह में 1 दिन इकट्ठे हो सकते हैं, और इनके माध्यम से आप अपने फिजिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसके साथ मेंटल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं कि हम अपने मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना एक हमारा जीवन का टारगेट है, फिर मन को कैसे स्वस्थ रखें वो हमारा एक दूसरा चैप्टर शुरू होता है। क्योंकि साइकोसोमेटिक है हमारा जो ये व्यक्तित्व है, केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं। तो शरीर का प्रभाव हमारे मन पर जाता है। शरीर यदि जैसे बहुत गर्मी में, मैं बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, बहुत वर्षा हो रही हो, तो उससे मन भी थोड़ा विचलित हो जाता है। और जैसे मन विचलित हो जाए तो उससे ऐसे नेगेटिव हार्मोन्स हमारे शरीर में सीक्रेशन होता है कि जो विष घुल जाता है हमारी नस नाड़ियों में, और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। कहते हैं ना कि गुस्सा करेंगे तो ऐसे हार्मोन्स का सीक्रेशन होगा जो हमारे शरीर को विषाक्त बना देंगे। तो शरीर का प्रभाव मन के ऊपर जाता है, और मन का प्रभाव शरीर पर आता है। तो शरीर को ठीक रखने के लिए मन को स्वस्थ रखना होता है, प्रसन्न रखना होता है,
और मन को प्रसन्न रखने के लिए शरीर को, तो दोनों इंटरलिंक्ड हैं। तो हमको कैसे मन प्रसन्न रहता है, तो मन की प्रसन्नता के लिए हम कोई सेल्फलेस सर्विस करें। जितना हम कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि दूसरे को सुख मिले, तो हमारा मन प्रसन्न होगा। मैं कुछ ऐसे सूत्र आपके सामने रख रहा हूं कि मन कैसे प्रसन्न रहता है। शरीर को खुश रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अलग प्रोग्राम करना पड़ता है। जैसे भाग दौड़ करनी पड़ती है, उछल कूद करनी पड़ती है, ऊपर नीचे होना पड़ता है, पेट को हिलाना पड़ता है, और ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। भोजन ठीक समय पर लेना, ठीक मात्रा में लेना, और सत्य कमाई का हित भूख मित भूख रित भूख, ऐसे करके हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि मनुष्य कैसे रोगी नहीं होता। तो कहते हैं हित भूख, हितकारी भोजन करेगा तो रोगी नहीं होगा। तो कहते हैं परिमित भोजन करेगा, मित भूख, परिमित भोजन करेगा तो रोगी नहीं होगा, और रित भूख, सत्य कमाई का भोजन करेगा, मेहनत का भोजन करेगा तो रोगी नहीं होगा। तो इस तरह से शरीर को ठीक रखने के अलग सूत्र हैं, मन को स्वस्थ रखने के क्या सूत्र हैं, उस पर ज्यादा हमें फोकस करना पड़ता है, गंभीर है वो विषय। तो उसके लिए मैं समझ पाया हूँ, मन को स्वस्थ करने के लिए देव पूजा करनी, देवताओं की पूजा करनी होती है। मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने सद्भाव मन में बार बार लाने होते हैं। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसे भाव अपने अंदर लाने होते हैं, सबका भला हो, सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो इस दुनिया में। बार बार अपने प्रातः काल और बीच में भी, और सायकाल भी, सोते समय भी, जगते समय भी, ऐसे बार बार मन में भाव लाने होते हैं कि सब दुनिया में सुखी रहें, किसी को कोई आपत्ति ना हो, किसी के जीवन में कष्ट ना आए। ऐसे भाव बनाने से, हमारे सोचने से उनके ऊपर आपत्ति नहीं आएगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारा मन ठीक हो जाएगा। ऐसा विचार करने से दूसरे के कष्ट ठीक हो या ना हो, दूसरे की समस्याएं ठीक हो या ना हो, पर सोचने वाले का मन ठीक हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने मन को ठीक रखने के लिए इस तरह की प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए कि सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब एक दूसरे को सहायता करें, सब एक दूसरे में ऐसे रहें जैसे कि नई ब्याई हुई गाय और बछड़ा आपस में रहते हैं। आपने देखा नहीं होगा, गाय जब प्रसव होता है ना, तो भयानक पशु भी उसके पास आ जाए तो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। एक गाय हमारे वहाँ, हमारे यहाँ गौशाला भी है, तो मैंने देखा कि उस गाय को मैं पास में जैसे ही जाता हूँ तो ऐसे मेरे ऊपर सिर रख करके खड़ी हो जाएगी, इतना प्रेम करेगी, इतना ज्यादा मेरे को बार बार अपने शरीर को मेरे शरीर के साथ रगड़ेगी। लेकिन उसका प्रसव हुआ तो मैंने देखा कि अपने बछड़े की रक्षा ऐसा समझती है कि अब इस समय दूसरा कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आना चाहिए। और मैंने देखा कि मैं भी जाता हूँ तो वो एकदम अटैक करने के लिए भागती है बहुत तेजी से। यदि उस समय वो बंधी हुई ना हो तो व्यक्ति को जान से मार सकती है। तो इतना प्यार है अपने बछड़े के प्रति। तो ऐसे ही हम एक दूसरे से, वेदों में उपमा दी कि अन्योन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाज्ञा, जैसे गाय बछड़े से, नव प्रसूता गाय, नई ब्याई हुई गाय जैसे बछड़े से प्यार करती है, ऐसे हम एक दूसरे से प्रेम करें तो ऐसे मन प्रसन्न होता है। हम सद्भाव से, मतलब कुल मिलाकर दूसरे को प्रति सद्भाव से मन प्रसन्न रहता है। ज्ञान से भी मन प्रसन्न रहेगा, जैसे अच्छी अच्छी बातों को जानने से, यथार्थ जानने से भी मन प्रसन्न रहता है। धर्म के आचरण से भी मन प्रसन्न रहता है। पर ये धर्म क्या चीज है? धर्म का मतलब जो डिवाइन क्वालिटीज है उनको धर्म कहते हैं। धैर्य धर्म है, क्षमा धर्म है, और मनोनत निग्रह, मन का संयम धर्म है, क्रोध न करना धर्म है, अक्रोध की स्थिति धर्म है, और
यथार्थ ज्ञान धर्म है, ये सब चीजें धर्म में आती हैं। महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आता है। वहां पूछा कि आप हमें अंतिम उपदेश सुना दो, वेद व्यास जो लेखक हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं पूरे महाभारत का सार तुम्हारे को एक श्लोक में कह देता हूं। अंतिम वाणी जो महाभारत की है वो ये है, न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतो धर्मो नित्य सुख दुखे त्वनित्य जीवो नित्य हेतुरस्य त्वनित्य। तो कहा कि कामना के कारण आदमी धर्म को छोड़ देता है, किसी इच्छा के कारण। जैसे कि किसी को कोई प्रबल इच्छा हुई कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, फिर वो ये नहीं देखेगा कि ये किस गुड मीन्स और बैड मीन्स, ये नहीं देखेगा। उसकी इच्छा यदि बहुत प्रबल होगी तो खराब रास्ते से भी यदि उसका मौका लगे तो खराब रास्ते से भी 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहेगा। तो कामना से भी धर्म को नहीं त्यागना चाहिए, ये कहा। न जातु कामान न भयात, भय के कारण हम धर्म को छोड़ देते हैं, लोभ के कारण हम धर्म को छोड़ देते हैं। कामना के कारण, भय के कारण, लोभ के कारण, न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम चले, जीवन की रक्षा के लिए भी धर्म को छोड़ देते हैं। धर्म की रक्षा इतनी ज्यादा आवश्यक बता दी कि किसी भी कारण से धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जी, धर्मो नित्य सुख दुख नित्य, धर्म नित्य है, सुख दुख आने जाने वाले हैं। आने जाने वाली चीज को सामने रख करके नित्य चीज को क्यों छोड़ें। जीवो नित्य, ये जो जीव है हमारे भीतर, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में तीसरे शरीर में जाता आता रहता है, जीव नित्य है। और इस जीव का हेतु है अज्ञान, वो तो अनित्य है। जीव अज्ञान के कारण से और इस श्रृंखला में से, कर्म श्रृंखला में से, जन्म श्रृंखला में से गुजरता है। तो इसका जो अज्ञान हेतु है वो तो अनित्य है। ये यदि अज्ञान अभी है, यदि ज्ञान आ जाए तो यह अज्ञान हट जाएगा। तो इस तरह से हमें देखने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। मानी स्वाध्याय से हमारा मन शुद्ध होता है, भक्ति से भी हमारा मन शुद्ध होता है। सद्भाव भक्ति कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, तुम सर्वसमर्थ हो, तुम सबके हो, मेरे भी हो, तुम मेरे हृदय में वास करते हो। जैसे तुम बाहर हो वैसे मेरे भीतर भी हो, तुम देवताओं में भी हो और नीचे वाली चीजों में भी हो, ऊपर वाली चीजों में भी हो, कण कण में तुम्हारी उपस्थिति है, ऐसा हमारे शास्त्र समझाते हैं। तो ऐसे भगवान को भक्ति के साथ स्मरण करने से भी हमारा मन शुद्ध होता है। तो इन सब उपायों से मन को शुद्ध किया जाता है, ज्ञान से, स्वाध्याय से, सत्संग से और भक्ति से, दूसरों के प्रति सद्भाव करने से हमारा मन शुद्ध होता है और बुद्धि भी निर्मल होती है। ज्ञान को स्वीकार करके उसको धारण करने से, उसको समझने से बुद्धि स्थिर होती है। ऐसे कहा कि बुद्धि के 8 रूप होते हैं और 4 रूप तो निकृष्ट है, 4 रूप उत्कृष्ट है। तो कहते हैं जब रजोगुण होता है तो बुद्धि अधर्म में ही जाती है, अज्ञान में ही जाती है, राग उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दुनिया की चीजों के प्रति, और उस बुद्धि में जो एक इच्छा शक्ति होती है उसकी कमजोर हो जाती है। और जो लोग सत्वगुण में रहते हैं उनकी बुद्धि में धर्म प्रतिष्ठित रहता है, ज्ञान प्रतिष्ठित रहता है, उनमें संसार की चीजों के प्रति राग नहीं होता है और उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, दृढ़ होती है। तो इस तरह से हमारी बुद्धि का परिष्कार होता है। और भी ज्यादा यदि गंभीरता में हम जाते रहते हैं, और भी सीरियस अपने भीतर शांति की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो वहां ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक चैतन्य मात्र शेष रह जाता है और सारी चीजें चुप हो जाती है। तो मैंने ये बात आपके सामने कही कि हम कैसे अपने मन को स्वस्थ रखें, कैसे अपने तन को स्वस्थ रखें, कैसे अपनी बुद्धि को स्वस्थ रखें।
ये अलग अलग उपाय हैं, इनको हमें ध्यान देना पड़ेगा, इनको हमें अपनाना पड़ेगा। हम जैसे भौतिक साधनों के प्रति इच्छा वाले होते हैं, कि हम सबको ये इच्छा होती है कि भौतिक साधन हमारे पास, सबके पास होने चाहिए। हमारे पास मिलियंस हैं तो बिलियंस होने चाहिए, इस तरह की इच्छा होती है। हमारे पास 1000 है तो हम 1 लाख होने चाहिए, 1 लाख है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 1 करोड़ हो तो 10 करोड़ होना, 10 करोड़ हो तो 1 अरब होना चाहिए। ऐसे हमारे मन में इच्छाएं आती रहती है। तो ऐसे ही हमको अपने मन और बुद्धि की शांति और स्थिरता के लिए भी प्रयत्न करना होना चाहिए। उसमें भी हमारे को ऐसी ही लगन लगनी चाहिए कि मेरी बुद्धि शांत हो, मेरी बुद्धि स्थिर हो। मैं कैसे अपने मन को शांति से भरा भरा पूरा रख सकता हूँ, ऐसे विचार आना चाहिए। क्योंकि शुरुआत तो विचार से ही होती है। जो चीजें हमारे मन में आती हैं फिर आगे उनका क्रिया रूप होता है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। 4 स्टेप बताए कि व्यक्ति मन से जिसका ध्यान करता है वो वाणी से बोलेगा, और वाणी से बोलेगा उसका कर्म में आएगी वो चीज, और जो कर्म में आएगी हम वैसे ही हो जाएंगे। जो चीज हमारे कर्म में आ जाती है हम वैसे ही हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो व्यक्तित्व है वो मन के संकल्प से शुरू होता है। मन में जैसे विचार होंगे वैसे हम बन जाएंगे। मन से यदि हम उत्साह भरी वाणी में रहेंगे कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे अपने जीवन को संभालना है। दिक्कत ये होती है कि वृद्धावस्था में नई शुरुआत मुश्किल से होती है। जो पुरानी चीजें हैं वो रिपीट होती हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है। नई शुरुआत करने के लिए जब कहा जाता है तो उत्साह नहीं जुटा पाते। वृद्ध लोग अपने आप को बदलने के लिए जिस उत्साह की जरूरत होती है वो उत्साह नहीं जुटा पाते। जैसे आप देखना, कोई आप स्वयं भी अपने की भाई अब तो जो कुछ होना था हो गया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अभी तो हमारे जो बच्चे होते हैं ना उनको महाराज उपदेश दो। मेरे को तो ऐसे कहते हैं महाराज हमारा तो हो गया जो होना था, अब इन बच्चों को, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दो, इनको समझाओ ये सही रास्ते पर चलते रहे। तो ऐसी बात नहीं है। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, ऐसा मैंने सुना है कि कभी भी देर नहीं होती है। हम यदि, हमारे पास 10 दिन बचे हैं जीवन के, 1 सप्ताह बचा है। कहते हैं महाभारत में एक कोई यज्ञ हुआ, और वो उस यज्ञ में सांप, वो क्या कुछ कहानी है, पूरी कहानी मुझे याद नहीं आ रही, पर उसमें ये बात थी, राजा परीक्षित को कहा कि तुम्हारा 1 सप्ताह का जीवन शेष है, जो कुछ करना है कर लो। तो वो निर्भय हो गया, एकदम मुस्कुराने लगा, बोले ठीक है 1 सप्ताह है तो मेरे को तो बस मिल गया टाइम, मैं तो अब। तो उसने अपने आप को बिल्कुल भगवान के चरणों में अपना मन लगा दिया। तो ऐसे हमें यदि सुनिश्चित हो जाए कि हमारा जीवन तो बहुत थोड़ा है, तो उस थोड़े से जीवन को भी हम, जो बचा हुआ जीवन है उसको हम भगवान के चरणों में, उसकी याद में, उसके काम में यदि हम लगा देते हैं तो हमारा बहुत कुछ, हमारा उद्धार हो जाएगा। और ये बात तो मानकर चलो, हमारे वेद और हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि ये जीवन का अंत इसी शरीर के साथ नहीं है। और मैं कई बार कई लोगों से कहा, यदि हमें इतना ही निश्चय हो जाए कि भाई इस शरीर के साथ ही तुम्हारा खेल खत्म होना है, तो फिर कैसे भी जियो, क्या बात है फिर। पर यदि ये सुनिश्चित है कि इस जीवन के बाद एक और जीवन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर जो हमने किया है उसको सुख दुख के रूप में भोगना पड़ेगा, तो हमें सीरियस हो जाना चाहिए। और भोगने का अर्थ यही होता है कि हमें
कभी हम सुखी होंगे, कभी हम दुखी होंगे, ऐसे भोग होता है। और भोग के यदि हम साक्षी बन जाएं तो हम सुख से और दुख से ऊपर उठ जाते हैं, आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो हमें सुख और दुख का साक्षी बनना है। जिसको हम देखते हैं वो, जो हमें दिखाई देता है वो देखने वाले से अलग होता है। ये बात मैं बार बार जहां मुझे प्रसंग मिलता है ये सुनाता रहता हूँ कि जो देखने वाला है वो दिखने वाले से अलग होता है। जैसे ये मकान मुझे दिख रहा है तो मकान अलग है, मैं अलग हूँ। तो ऐसे ये शरीर मुझे दिख रहा है तो शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मेरे को इच्छाएं, मेरे को सुख दुख दिखते हैं, सुख भी दिखता है, दुख भी दिखता है। कोशिश मैं जो करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, वो भी दिखता है। तो जो भी दिखता है वो दिखने वाले से, देखने वाले से अलग होता है। और वो देखने वाला निर्दोष होता है। कल एक ने प्रश्न किया कि जी हमारा भूतकाल में हमसे गलतियां होती हैं, वो बार बार याद आती हैं, उनको कैसे, उनसे पार कैसे जाएं, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। तो मैंने कहा कि भूतकाल तो ठीक है चला गया, पर उसकी स्मृति से अभी हम दुखी होते हैं। वर्तमान ये नहीं समझते कि वर्तमान तो सभी का निर्दोष है। वर्तमान क्षण जो होता है, अभी जो आप बैठे हैं इस हॉल में और अभी मेरी बातें सुन रहे हैं, आपसे मैं पूछूं या मैं अपने से पूछूं कि ये वर्तमान क्षण तुझे कैसा लग रहा है, तो आप सब ईमानदारी से यही कहेंगे कि वर्तमान में तो कोई समस्या नहीं, वर्तमान तो निर्दोष है। तो जब वर्तमान निर्दोष हो गया और वर्तमान ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, भूत और भविष्य तो काल्पनिक है, भविष्य तो एकदम कल्पना के ऊपर टिका हुआ है, और भूत जो चला गया है, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज डेड, और वर्तमान ही अलाइव है। जब वर्तमान ही जीवित हमारा जीवन है तो, और वो है निर्दोष, तो इस निर्दोषता को क्षण क्षण में हमें जीना चाहिए कि वर्तमान में हमें किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना। होगा कोई बुरा, हमें क्या अधिकार है? बहुत सीरियस बात है ये। हम इतने बेहोश होते हैं कि तुरंत हमारे मन में निर्णय आ जाते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो हमें ना किसी को बुरा बोलना, ना बुरा करना, ना बुरा देखना, ना बुरा सोचना। वर्तमान क्षण को हम पकड़ लें तो बस हमारा उद्धार हो जाएगा। वर्तमान क्षण सभी का निर्दोष होता है। आपने, आप आपसे यदि पूछे कि आप में क्या दोष है, बोले जी हमने बहुत गुस्सा किया, हमने कभी कभी बहुत लोभ लालच किया, कभी कभी हमने इंद्रियों की खुली छूट दे दी, कुछ कुछ ऐसे बोलेंगे। पर हम कहेंगे ये तो भूतकाल में हुआ है, अब आज बताओ आज क्या गलती है, तो बोले आज तो कुछ नहीं। तो आज कुछ नहीं तो वही वास्तविक चीज है। उस निर्दोषता को समझना चाहिए, उसको हमें पकड़ना चाहिए, और वो यदि पकड़ में आ गई तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसी एक बात में जीवन का उद्धार छिपा हुआ है कि हम वर्तमान की निर्दोषता को पकड़ लें। वर्तमान निर्दोष यदि हमारे समझ में आ गया तो बस फिर क्या है, क्या बच जाता है? तो ये जो जीवन है ये साइकिल है। जैसे हम क्रोध करते हैं तो हमारा दो चीजें इकट्ठी होती है, हमारे स्वभाव में क्रोध बढ़ता जाता है और हमारा एक बैड कर्मास है वो भी इकट्ठा होता जाता है। तो जब हमारा कर्माशय बुरा होता है तो क्या होता है, आगे चल करके हमें उसके आधार पर तीन चीजें मिलती हैं। एक जन्म मिलेगा, एक योनि मिलेगी, और योनि में एक आयु मिलेगी कि ये 100 वर्ष जीना है या 80 वर्ष जीना है, 50 वर्ष, 40 वर्ष। और उसके साथ सुख दुख भी मिलेगी, सुख दुख के साधन भी मिलेंगे। जैसे बुद्धि मिल गई, अच्छी बुद्धि मिल गई, सामान्य बुद्धि मिल गई या हीन बुद्धि मिली, और हमारे को रूप मिल गया, बहुत अच्छा रूप मिल गया, बहुत अच्छा कंठ मिल गया, स्वर मिल गया, और बहुत ही अच्छा हमें दिमाग मिल गया, ब्रेन मिल गया, हमें बहुत ही कर्मठता मिल गई। हमें इनके साथ रहता हूँ, समर्थ गुरु के साथ रहता हूँ कई दिन से, 30 तारीख से आया हुआ हूँ, इनको देख रहा था।
तो मैंने कहा कि इनमें आलस्य तो इतना सा भी नहीं है, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, इतना सा भी आलस्य नहीं है। तो ये ऐसे इनके स्वभाव में जो ये चीज आई है, जन्म जन्म से हमारे साथ आती है, ऐसे नहीं आती है, ये अचानक हो गई, पहले से ही आ रही है, बाल्यकाल में भी ऐसे ही होंगे, और उससे पहले जन्म में जब ऐसे थे तब इस जन्म में इस तरह का जीवन शुरू हुआ। तो ये हमको मान लेना चाहिए कि कैसे हम अपना परिष्कार कर सकते हैं। अभी जो चीजें हमने अपने स्वभाव में लाना शुरू की तो वो साथ चली जाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई एक माता जी बहुत ज्यादा दान देती रहती है, वहां मेरे को, मैं अभी इधर आ रहा था ना, बोले कि वो ले जाना, कुछ लड्डू बांट देना मेरी तरफ से ना, ले जाना साथ। तो मैंने कहा कि माता जी कहाँ गाड़ी में इसमें प्लेन में कहाँ कहाँ पता नहीं वो फेंकते रहते हैं इधर से उधर, कैसे मैं करूंगा। बोले नहीं नहीं क्या है, मैंने कहा मेरे पास सामान ज्यादा हो रहा है। तो वहां गुरुकुल में भी भेजती रहेंगी, बीच बीच में प्रसाद भेजती रहेंगी। फिर मैंने कहा कि आपको ये कैसे हो गया। बोले पता नहीं, हमारे घर के पास पाकिस्तान में गुरुद्वारा था, तो वहां एक बार घोषणा हुई कि गुरुद्वारा से ये बात आई कि अपने अपने घरों से रोटी बना करके और पहुंचानी है, और आटा हम दे देंगे। तो मैं तो, हमारे घर में खूब सारा अनाज था, तो मैं तो अनाज अपने आप अपने हाथ से पीसती और आटा बना, बच्ची थी, बोले मैं 14-15 साल की बच्ची थी, आटा पीसती और मैं रोटी भी बनाती और अपने ही घर से बना करके दे देती। तो पता नहीं ये कहां से आया ये संस्कार। मैंने कहा कि माता जी आपको अगले अगले जन्म में भी ऐसे ही बांटना पड़ेगा, ऐसे ही बांटती रहोगी फिर। तो अभी गुस्सा करेंगे तो अगले जन्म में भी गुस्सा करेंगे, अभी यदि लोभ करेंगे तो अगले जन्म में भी लोभ करना पड़ेगा, अभी यदि पढ़ाई में ध्यान देंगे तो अगले जन्म में भी पढ़ाई करेंगे, अभी साधना करेंगे तो अगले जन्म में भी साधक साधिका बन जाएंगे। अभी जो है, रात को सोने से पहले हम जो होते हैं, जगने के बाद वही तो होते हैं, बदल थोड़ी जाते हैं। कि रात को तो हम सोने से पहले एक प्लेयर थे और जगते ही हम एकदम से बिजनेसमैन बन गए, या सोने से पहले तो बिजनेसमैन थे और सुबह जगते ही हम खेलने लगे, क्रिकेट खेलने लगे, या यहाँ पर बता रहे थे कि ये कौन सा गेम, टेनिस। यहाँ पर जैसे टेनिस का प्लेग्राउंड है, तो सुबह जगते ही टेनिस खेलने लगे, ऐसा थोड़ी होता है। हमें निरंतर जिस चीज का अभ्यास होता है वही चीजें हमारे स्वभाव में बैठ जाती हैं, और वही हम, वो रिपीट होता रहता है। तो हम पहले जो थे वही ये हैं। आप एक प्रश्न करोगे कि इसका मतलब तो ये है कि हमारा तो कोई व्यक्तित्व अस्तित्व ही नहीं बचा, क्योंकि हम जो पहले थे वही रिपीट होगा, तो क्या हम बदल नहीं सकते फिर? हमारा स्वभाव यदि थोड़ा सा नीचा है तो हम अच्छा स्वभाव वाले नहीं बन सकते क्या? मेरी बात सुन करके आप ऐसा प्रश्न उठाएंगे कि जो चीजें हैं वही साइकिल होती है, वही रिपीट होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो मैं ये कहूंगा कि है हमारे पास भी उसकी बदलने की चाबी भी, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। यदि हमने किसी महापुरुष की वाणी सुनी या कोई शास्त्र का वाक्य सुना और हमारे मन में ये बैठ गया कि भाई ये चीज तो अच्छी नहीं, तेरे अंदर जो चल रही है ये चीज अच्छी नहीं है, तो अच्छी क्या है, बोले इससे इसको छोड़ना ही इस समय अच्छा है, और ये चीज अच्छी है। इस बात को यदि हम निश्चय कर लें, किसी की वाणी सुनकर करें या पुस्तक पढ़कर करें या अपनी ठोकर खाकर करें, हमारे अंदर ये विचार आ जाए बार बार दुख देख करके कि भाई इस व्यवहार से बहुत सारा लोगों को तू परेशानी कर रहा है और अपने आप भी दुखी होता है, तो ऐसा करने से हम बदलाव की शुरुआत हो जाती है, बदलाव का बीज बो दिया जाता है और हम बदल सकते हैं अपने आप को। मानी पुरुषार्थ जो हम होते हैं उसको बदल सकता है, और पुरुषार्थ जो होते हैं उसको गति दे सकता है। दो काम करता है पुरुषार्थ, हम जो होते हैं उसको और ज्यादा गति दे सकता है, और हम जो होते हैं उसको बदल भी सकता है।
तो यदि आप बदलना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, इंतजार नहीं करना। जो जो भी आपको अच्छा लगता है उसकी शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। जितना भी दिन जिए, क्या परवाह करनी कि अभी तो थोड़ा समय बचा है, थोड़ा बचा है, अधिक बचा है, क्या इसका क्या अर्थ है? कुछ भी अर्थ नहीं है। हम एक शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलता है, उसके बाद तीसरा मिलता है। ये कोई अंत थोड़ी है, यात्रा है तो चलती रहने वाली है। तो इसलिए अपने आप को हमें बदलने के लिए, यदि गुस्सा करते हैं तो गुस्सा का कारण को खोजें और उसका निवारण करें। गुस्सा का कारण दो ही होते हैं, ये काम ऐसे होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दो बातों को छोड़ना पड़ेगा गुस्सा छोड़ना है तो। हम गुस्सा आता है ना हमारे को, इसी कारण तो आता है कि ये ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए, इसको ऐसे बात करनी चाहिए, ये क्या बेहुदी बात करता है, करती है। तो गुस्सा छोड़ने के लिए ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात को छोड़ना पड़ेगा। यदि अपने अंदर बहुत ज्यादा लोभ वृत्ति है तो उसको छोड़ने के लिए हमें उदारता लानी पड़ेगी, विपरीत चीज लानी पड़ेगी। यदि हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हमें दूसरे को मित्र के रूप में देखना पड़ेगा। यदि हम दूसरे की हानि पर खुशी होती है तो हमें अपने व्यक्ति के दुखी होने जैसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी कि अपना आदमी दुखी होता है तो कैसा सोचता हूँ। और मैं तो बहुत ज्यादा ऐसे सोचता रहता हूँ कि जैसे मेरे को ना किसी किसी व्यक्ति को सामने खड़ा करके देखता हूँ तो बिना ही मांगे, एक आईएएस अधिकारी है वहां भारत में और उनका भतीजा भी आईएएस है, तो मेरे को बोले एक बार कि आचार्य जी, इस लड़के को मैं जब देखता हूँ तो आशीर्वाद की धाराएं बहने लगती है और वो बहुत ही वास्तव में बहुत अच्छा है। और मैं भी फिर ध्यान दिया कि मेरे को भी कई कई लोगों को जब मैं देखता हूँ तो आशीर्वाद अपने आप ही फूट कर, अपने आप ही अंदर से आशीर्वाद निकलने लगता है। तो हम जब अच्छे होते हैं तो भगवान का भी आशीर्वाद इसी तरह मिलता है। अपने स्वभाव को अच्छा बनाते हैं तो भगवान का भी आशीर्वाद, जैसे हमारे को होता है ना, जो हमारे निकट, भगवान तो सबको जानता है, जो जैसा है उसको सबको जानता है। और भगवान के अनुकूल जो आचरण करता है, भगवान के ज्ञान के अनुकूल जो आचरण करता है, भगवान जिसको अच्छा मानते हैं वैसा ही हम आचरण करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमें मिलने लगता है। जैसे उदाहरण दिया कि मैं जिसको पसंद करता हूं, मैं समर्थ गुरु को पसंद करता हूं तो ये तब करूंगा जब ये मैं जो चीजें अच्छी सोचता हूं वो इनमें देखूंगा। जिन चीजों में आप अपने बच्चों को देख लो, बिना मांगे आशीर्वाद मिलेगा बच्चों को। ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को तो सभी देते हैं आशीर्वाद, ऐसा नहीं। मन उड़ता रहता है, उनके गलत व्यवहार को देख करके आशीर्वाद थोड़ी आता है, उड़ता रहता है, परेशान होते रहते हैं। आशीर्वाद तब आता है जब आप जैसा चाहते हैं वैसा ही बच्चा करने लग जाए। पति जैसा चाहे पत्नी वैसा ही करेगी तो पत्नी को आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। ये थोड़ी करना कुछ उसमें कुछ ऐसा नहीं कहना नहीं पड़ता है कि आई लव यू, आप तो मेरे को मतलब प्रियतमा है, मैं तो संसार में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें ही करता हूँ। ये सब बोलने की बात नहीं होती है, अपने आप हृदय से वो चीजें निकलने लगती है। तो लोक व्यवहार को देखकर हम भगवान के भी कार्य प्रणाली को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लोक व्यवहार में ऐसा होता है कि हम किसी का प्रियाचरण करते हैं, दूसरे को जो अच्छा लगता है वो जब हम करते हैं तो दूसरे की तरफ से हमको बहुत आशीर्वाद मिलता है और ये आशीर्वाद भगवान की तरफ से भी मिलता है। तो मैंने ये कुछ बातें आपके सामने रखी, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ प्रश्न आपके हो तो वो भी प्रश्नोत्तर भी हो सकते हैं। हाँ जी बोलिए। आपके ठीक हूँ, मेरा सुनने के वो हाँ नहीं तो दूसरों को भी सुन जाएगी। आपके चरणों में शत शत प्रणाम। प्रणाम माता जी। जो कुछ भी आपने कहा है बिल्कुल सत्य है, सब मानते हैं। क्रोध नहीं करना, मन को संतुलित रखना, सब कुछ ठीक है।
मेरा प्रश्न ये है, आप सन्यासी हैं, हम गृहस्थी हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वातावरण, परिस्थितियां, जैसे आप कहते हैं पति का स्वभाव, बच्चों की बदतमीजी, रिश्तेदारों के साथ का, कैसे क्रोध को हम शांत कर सकते हैं? कोई जी। तरीका ही नहीं है शांत, कितना भी कोशिश करें उससे क्या होता है? क्रोध को तो शांत कर लेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। सही, मैंने वही माता जी ये बात कही कि मैंने ये बात कही। ठीक है, मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ इस बारे में। साइलेंस में रहने का अभ्यास करना चाहिए अलग से। जैसे कि कोई व्यक्ति, एक बात मैं पूछता हूँ, कोई एक टेनिस प्लेयर, टेनिस इसलिए कह रहा हूँ कि टेनिस का गढ़ है, तो कोई आदमी बिल्कुल टेनिस का अभ्यास नहीं करता और ओलंपिक में जाकर खड़ा हो जाए तो विजय प्राप्त कर लेगा? कोई व्यक्ति टेनिस प्लेग्राउंड में दिखाई नहीं देता और कहे कि मैं ओलंपिक में विजयी हो जाऊंगा, कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। आपकी प्रैक्टिकल समस्या है, उसको मैं समझ रहा हूँ कि परिस्थितियां कैसा तंग करती हैं, कैसा एक क्षण में आदमी कुछ का कुछ हो जाता है। तो उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा साइलेंस में रहना पड़ेगा। और उसके लिए ओम और साइलेंस, ओम साइलेंस, ओमकार बोला और 5-4 क्षण के लिए साइलेंस में रहो। ओम, अभी कर लीजिए सभी लोग, कुछ सीख लेंगे तो बहुत अच्छा। जैसे ओम। दो ओंकार के बीच में जो एक गैप आता है जिसमें कोई विचार नहीं है, उसको ढूंढने की कोशिश करो, उस साइलेंस में जीना शुरू करो, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो साइलेंस में इतनी ताकत है कि विपरीत परिस्थितियों को भी ओवरकम कर सकता है। वो साइलेंस है ना, वो परमात्मा का रूप है। तो परमात्मा के लिए तो सारी चीजें सरल हैं। परमात्मा के आगे क्या कठिन है? क्रोध और लोभ और ईर्ष्या, द्वेष, सारे विकार परमात्मा के सामने तो कुछ नहीं है। तो साइलेंस ही परमात्मा है, साइलेंस ही विजडम है, साइलेंस ही परमात्मा है। ये साधन करना पड़ेगा। माता जी देख लो, यदि आप क्रोध पर विजय पाना चाहती हैं और सारी विकारों पर विजय पाना चाहती हैं, तो साइलेंस ही विजडम है, साइलेंस ही परमात्मा है। उस साइलेंस में हमें जाना पड़ेगा, या फिर अत्यंत भक्ति भाव में रहना पड़ेगा। 2 रास्ते बताए मैंने, या तो साइलेंस या फिर भाव में। ये सब परमात्मा के रूप हैं और मुझे क्या हक है इन पर गुस्सा करने का, मानी समर्पण के भाव में। और समर्पण तो वही है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज सरेंडर। रिलिंक्विश करना, रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसको रिलिंक्विश कर देना, उसको छोड़ देना, ये समर्पण होता है। तो या तो समर्पण में रहें या तो साइलेंस में रहें, 2 ही रास्ते हैं, तीसरा तो कोई मार्ग ही नहीं है। आप कितने भी बात कहेंगे कि जी क्या करें, तो वैसे हो जाता है। तो उसका उपाय बता रहा हूं, उपाय तो करना पड़ेगा, बिना उपाय के तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ जी, ये बहन पूछ रही है। एक चुप 100 सुख, हैं? एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 सुख। हाँ, वो तो मैंने कह ही दिया। हाँ जी। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, आपको अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। पर अभी जैसे आप बोल रहे थे कि जैसा स्वभाव होता है मनुष्य को वैसा ही मतलब जीवन, अगला जीवन मिलता है। मल्टीप्लाई होता है। हाँ, लेकिन फिर ये कहाँ है कि हर बार मनुष्य की योनि ही मिलेगी? कहते हैं मनुष्य का जीवन तो बड़ा अमोल है और जरूरी नहीं कि अगला जन्म हमारा मनुष्य का ही हो। अब यदि हमने मनुष्य के लायक जो काम किए तो जरूर मनुष्य ही मिलेगा।
अभी यदि हमने मनुष्य के लायक काम किए, मनुष्य की चेतना है, पशु की एक चेतना है, यदि हम बेहोश रहेंगे तो फिर मनुष्य नहीं मिलेगा। यदि हम अलाइव रहेंगे और भावपूर्ण हृदय से रहेंगे, सबका भला सोचेंगे और अपने मन और इंद्रियों पर धर्म के आचरण में रहेंगे। धर्म का मतलब केवल देवता के आगे सिर झुका देने से धर्म नहीं होता है, ये तो एक प्रतीक है। मानी देवता जिस तरह से शांत है और प्रसन्न है, ऐसे ही मुझे भी शांत और प्रसन्न, ये प्रेरणा पाने के लिए देवता के आगे सिर झुकाते। सिर झुकाने का अर्थ है कि मैं आप में जो है उसको अपने भीतर लाना चाहता हूँ। सिर झुकाने का अर्थ होता है, प्रणाम का अर्थ होता है कि आप में जो है वो मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। तो ये तो पक्का है, हम जो होते हैं वही मल्टीप्लाई होता है। यदि आज हमने धर्म को स्थापित कर लिया ना अपने स्वभाव में, तो 100% मुझे तो कोई संशय नहीं है, तो अगले जन्म में मिलेगा। अगले जन्म में भी आपको मनुष्य जीवन ही मिलेगा। धर्म को ही स्थापित कर लिया, अगले जन्म में मिलेगा। धर्म से मनुष्य का जीवन मिलता है। पशु में ऐसे कहते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य वेतत् पशु नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से जो हीन है वो पशु के तुल्य होते हैं। पशु चेतना में जिएंगे तो पशु में बनेंगे। और यदि आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार काम यदि करते रहे तो पशु ही बनेंगे। और इनसे आगे यदि विचार आ रहा है कि मैं सबका भला करूं, अपने इंद्रियों पर वशित्व प्राप्त करूं, अपने स्वभाव को बदलूं, सबके लिए अच्छा सोचूं, यदि ऐसा करेंगे तो ये धर्म की आचरण हो गया। कहते हैं ना, सच बोलो धर्म का आचरण करो। तो धर्म का आचरण धैर्य, धर्म का आचरण पेशेंस, टॉलरेंस, संयम, ये सब धर्म कहलाता है। हाँ जी गुरुदेव नमस्कार। जब मुझे शरीर में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, इंसान बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं कर सकता, फिजिकली मेंटली, और उनकी तकलीफें उनको इंटरफेयर करती हैं, तो क्या वो चलते फिरते भी भगवान से जुड़ा रहे? तो उसकी वो भावनाएं वो उस तक उसको पहुंच जाएंगी। जैसे कि किसी लड़की का प्यार हो जाए किसी लड़के से जवान उम्र में, यंग एज में, तो कोई बैठ करके मेडिटेशन थोड़ी करते हैं कि तू बहुत मेरे को तो अच्छा लगता है, तू मेरे को, चलते फिरते उठते बैठते वही रमा रहता है, दिमाग में वही बैठा रहता है। वो अलग बात है। वो जो हम लोग फिजिकली संसार के ऊपर बैठे हैं, उसकी तुलना हम ऊपर तक करने, उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें तो बहुत ताकत है। जो हम कहते हैं ना, शादी हुई है, नया लड़का लड़की है, वो उसमें तो बहुत ताकत है। मैं बस ऊपर की बात कर रही हूँ कि जिसमें हम लोग भड़क जाते हैं, हम फिसल जाते हैं, पहुंचते पहुंचते भी हम लोग अच्छा वो नहीं पहुंच सकते। के संबंधों में तो इतनी ताकत आ गई। हाँ। भगवान में हम इतना प्यार नहीं कर सकते। नहीं, हाँ, शरीर का जो तकलीफ है, जो मेडिटेशन में रुकावट डालता है, या फिर जो मैंने ये कहा कि मेडिटेशन कोई बात नहीं बैठ सकते, चलते फिरते लेटे उठते बैठते भगवान के धन्यवाद, उसके प्रति कृतज्ञता, ये सब तो कर ही सकते हैं ना, कि उसने कितना सुंदर ये दिमाग दिया, मैं विचार कर रही हूँ, मैं जीवित हूँ, सांस चल रहे हैं, उसकी एक एक देन के ऊपर विचार तो कर सकते हैं कि ये नासिका से मुझे पता भी नहीं कैसे सांस चल रहा है, मैं रोटी चीज पेट में डालती हूँ, खून में बदल जाती है, कैसे आंखें देखती हैं, कैसे कान सुनते हैं, कैसे नासिका गंध ग्रहण करती है, कैसे रसना हमारी रस का ग्रहण करती है, कैसे माइंड काम कर रहा है, कैसे इंटेलेक्ट समझ रही है चीजों को, उसकी ये जो देन है भगवान की, इन पर तो विचार कर ही सकते हैं ना, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के लिए सीधे बैठना, जैसे ये अभ्यास के लिए कहते रहते हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी सीधी करो और चलो, वो तो एक अभ्यास है, ठीक है, पर मैं उसका दूसरा एस्पेक्ट भी देख रहा हूँ कि कोई आदमी सीधा नहीं बैठ सकता, लेटे लेटे भी यदि भगवान की जो देन है, कितने
मतलब कितना, कितनी उसकी देन है, आप देखिए विचार करके थोड़ा। और उसने हमको वेद वाणी दी है भगवान ने, और वेद हमको समझ में आ गई कि वेद प्रेम का संदेश देता है, वेद ज्ञान का संदेश देता है और कर्म का संदेश देता है। कर्म के साधन वाणी, शरीर और हमारा मन होता है। कर्म के साधन 3 है, शरीर से, वाणी से और मन से। तो मुझे शरीर, वाणी और मन से वो कर्म नहीं करने जिससे मुझे पछताना पड़े। नास्तिकता भी मन का एक गलत काम माना है, कुछ नहीं है, ये सब ऐसे कह देते हैं ना हम, तो ये मन का अशुभ कर्म हो जाता है। और श्रद्धा से, भक्ति से भरे रहते हैं तो मन का शुभ कर्म हो जाता है। तो हमारे को शरीर, वाणी और मन से शुभ कर्म करने हैं, और हमें निरंतर अपने भाव को प्रेम में बनाना है, उसकी स्मृति में रहना है, भगवान की याद में रहना है। तो हम जो चाहते हैं वो ठीक होता जाएगा। आप करके देखो, थोड़ा सा मेरा जो सुझाव है उसको करके देखो। हाँ जी, और कोई? याद तो करते हैं भगवान को, लेकिन विरक्ति जो